وہ اندر پنڈال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. تو مہربانی کریں کہ اندر پنڈال میں تشریف لے آئیں. یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا. شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا. اب میں ملتمس ہوں شاعر اہل قصہ ذاکر شبیع الحسن کاظمی آف میرپور صاحب سے وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ذاکر شبیع الحسن کاظمی آف میرپور. زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین. الصلاۃ والسلام وتحیتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد. ناد علی مظہر العجائب تجد ہون القاف النوائب کل ہم و غم سائن جلی بے علی بے علی بے علی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. مالک بانی مجلس جناب سجاد حسین شاہ صاحب، ان کے پورے اس خاندان، ان کے بھائی، ان کے رفقا، ان کے عزیزہ، جو بھی اس مجلس امام حسین کے لیے کسی بھی صورت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام کی تمام حاجات پوری فرما. میرا مالک اس خاندان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے گھروں پہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. میرا مالک صدقہ آل محمد کا جتنے عزادار امام حسین آئے بیٹھے ہیں، ان تمام کی ساری دلی حاجات پوری فرما. میرا مالک سب دعاؤں کی ایک دعا حجت دورہ حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما. دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز بلند پڑھیے. اللہم سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس منبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا. یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں. اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں. اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں. اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے. بڑی مہربانی جی، مالک آپ کو سلامت رکھیں. بالکل آغاز مجلس ہے. میں بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں. مجھے 2 مجلسوں کے لیے حاضر ہونا تھا آگے، اس لیے میں نے ذرا جلدی زحمت دی اور آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. 4 مصروں سے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں. تمام آل کو عشق خدا میں تولا ہے. واہ واہ، بڑی مہربانی، آپ کی مہربانی، بڑی مہربانی بھائی جان. میرا مختصر سا ذاکری تجربہ ہے جس میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، بندے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں شعر سننے والا سامعی تھوڑا ہوتا ہے.
जहाँ बंदे थोड़े होते हैं वो सारे शेर समझ के शायर के साथ चल के दौड़ के शेर पे बोलने वाले होते हैं। मैं इस उम्मीद पे, इस आस पे बड़े खूबसूरत 4 मिसरों से आगाज़ करने लगा हूँ। इमाम ज़माना आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। तमाम आल को इश्क खुदा में तोला है, ये राज उसकी बका का इसी ने खोला है। भाई क्या बात है, आपके मयारे समाज की क्या बात है। ये पिछले मोहल्ले वाले भी मेरे साथ शामिल इबादत हो जाएं तो मैं जनाब के हक में दुआ करता जाऊंगा। तमाम आल को इश्क खुदा में तोला है, ये राज उसकी बका का इसी ने खोला है, ये राज उसकी बका का इसी ने खोला है। बड़ी मेहरबानी अंकल जी, ये राज उसकी बका का इसी ने खोला है। मौलाना साहब चौथे मिसरे में इमाम हुसैन का वो काम गिनवाने लगा हूं जो आदम से लेके हातम तक, हातम से लेके आखिरी इंसान की आखिरी सांस की आखिरी हिचकी तक किसी से हुआ ही नहीं, जो काम किसी ने किया ही नहीं। तमाम आल को इश्क खुदा में तोला है, ये राज उसकी बका का इसी ने खोला है। हुसैन दीन खुदा के लिए खुदा की कसम सीना की नोक को मिंबर बना के बोला है। हाथ उठा के हर बंदा हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। मालिक आपको सलामत रखें जी, बड़ी मेहरबानी। 4 मिसरे और पढ़ें जनाब। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है। नहीं, बड़ी मेहरबानी अंकल जी। अज़ादार इमाम हुसैन तो बोले। मेरी आवाज़ बड़ी खराब है, आपने आवाज़ नहीं देखनी, लफ्ज़ देखना है। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है। अज़ा कहते हैं अज़ादारी को, बाई ज़ियाफ़त जी कलीद कहते हैं बुनियाद को, और मुहालिफ कहते हैं दुश्मन को। ठीक है जी। बाई सिब्बत जी तर्जुमा भी हो गया, तशरी भी हो गई। अब अगर ये खड़ी शरीफ, मीरपुर, पुलमंडा, जातला मेरे इलाके वाले, मेरे घर वाले मेरे साथ बोल पड़े तो मैं जनाब से बड़ा राजी जाऊंगा। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है, अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है। एक दफ़ा देखना मेरी तरफ है, मैं अगले मिसरे में एक खद फाजिल मुकर्रर करने लगा हूँ। सफ़र आपने खुद करना है, पहुँचना आपने खुद है। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है, हाँ पाक अब भी है कायम पलीद मुर्दा है। भाई अज़मत इमाम हुसैन जिस बंदे को समझ आई है, जिस बंदे को ये कायम होना समझ आया है, अज़ा के जो है मुखालिफ कलीद मुर्दा है, हाँ पाक अब भी है कायम पलीद मुर्दा है, हाँ पाक अब भी है कायम पलीद मुर्दा है। और गली गली में, मोहल्लों में 400 हर सो हुसैन आज भी जिंदा, यजीद मुर्दा है। हैदरी। बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत जी, बड़ी मेहरबानी भाई जान, मालिक आपको सलामत रखें जी। बिस्मिल्लाह जी। मेरे भाई नईम रज़ा जाफरी साहब भी तशरीफ फरमा हैं, उन्हें भी हिताब फरमाना है, तो मैं एक मनकबत के 2-4 शेर पेश करके जनाब को सलाम करता हूँ। उसको शब्बीर ने मकरूज बना रखा है जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि शायरी तलमीहात की ज़ुबान है। भाई ज़ियाफ़त जी, अंकल जी, शायरी इशारों की ज़ुबान है। भाई अली हैदर, मैं अगले मिसरे में इशारा करूँ, ये बंदे पहुँच जाएं तो फिर मैं समझूंगा इन्हें शेर सुनना आता है। उसको शब्बीर ने मकरूज बना रखा है, किसको? जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है। वाह वाह, आपके लिए वाह वाह, आपके मयार के लिए वाह वाह जी। मैं लाख दफा पढ़ूं अंकल जी। उसको शब्बीर ने मकरूज बना रखा है, जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है, जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है। अंकल जी आपने कहा फिर पढ़े, मैं अगला शेर पढ़ूं और उसमें यह कर्जा अदा करना दिखाऊं तो फिर आप बुजुर्ग हैं, मेरे हक में दुआ जरूर फरमाइएगा। उसको शब्बीर ने मकरूज बना रखा है, जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है। काबा है अल्लाह का घर, करबला है हुसैन का घर, काबा है अल्लाह का घर, करबला है हुसैन का घर। अब इस बात को जहन में रख के मेरा शेर सुनना है। उसको शब्बीर ने मकरूज बना रखा है, जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है। वो था मकरूज, वो था मकरूज तभी कर्ज चुकाने के लिए, वो था मकरूज तभी कर्ज चुकाने के लिए उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा। हाथ बुलंद करके बड़ी मेहरबानी। उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा है।
अच्छा, कौन सा बंदा है जो करबला का जवार बैठा है? ये इंतजामी अमूर आपने देखना मेरी तरफ है। मजलिसें तब भी थी जब पंखों का वजूद ही नहीं था। ठीक है जनाब। बाइज़ जी, जिक्र हुसैन किसी चीज का मोहताज है ही नहीं। जो बंदा करबला का जवार है, एक दफा अपना हाथ बुलंद करे, एक दफा जी करबला के जवार। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ढेर सारे करबला के जवार बैठे हैं। अब जो बंदा करबला गया है और उसके सीने में करबला के वो मंजर सांस ले रहे हैं, वो बंदा मेरे शेर पे बोले बगैर रह ही नहीं सकता। वो था मकरूज, तभी कर्ज चुकाने के लिए उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा है, उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा है। इमाम हुसैन के रोजे का जवार बोले, उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा है। मरकदे हजरते मरकदे मेरा मालिक, मैं झोली उठा के दुआ कर रहा हूं, जो बंदे मुझ समेत करबला नहीं गए उन्हें इसी साल करबला की जवारी नसीब फरमा। जो बंदे गए हैं उन्हें बार बार बुला। मरकदे हजरत शब्बीर पे जाकर देखो, मरकदे हजरत शब्बीर पे जाकर देखो। मैं अगले मिसरे में आपके छठे इमाम की हदीस का तर्जुमा करने लगा हूं। मरकदे हजरत शब्बीर पे जाकर देखो, एक जवारी में कहीं हज का मजा रखा है। बड़ी मेहरबानी, हाथ उठा के जी, बड़ी मेहरबानी। एक जवारी में बड़ी मेहरबानी भाईजान, कहीं हज का मजा रखा है, कहीं हज का मजा रखा है। हुस्न यूसुफ भी है, हुस्न यूसुफ भी है, और सूरत सरवर इसकी किसकी किसकी? हुसैन के अली अकबर की। दो खसूसियात पढ़ने लगा हूं, हुस्न यूसुफ भी है और सूरत सरवर इसकी। अच्छा, अगर जाकिर का गला खराब हो तो उसके लफ्ज के ठीक होने पे तवज्जो कर लेते हैं। ठीक है जनाब, मैं आहिस्ता से मिसरा पढ़ने लगा हूं। हुस्न यूसुफ भी है और सूरत सरवर इसकी। एक अकबर में दो नबियों को छुपा रखा है। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। मलाक हुस्न यूसुफ भी है जी, लाख दफा भाईजान पढ़ूं, और सूरत सरवर इसकी। एक अकबर में, बड़ी मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। दो नबियों को छुपा रखा है। देखकर शाह को, देखकर शाह को सरवर पे ये बोले सारे। चलें चलें चलें, जिस बंदे को समझ नहीं आई, ईद का दिन था, कायनात के रसूल थे, रसूल की पुश्त पे हुसैन सवार थे। आहा भाई, हुसैन के दाएं हाथों में रसूल की दाएं जुल्फें, बाएं हाथों में हुसैन के रसूल की बाएं जुल्फें। हुसैन दाएं जुल्फों को जोर देते हैं, रसूल दाएं मुड़ जाते हैं। भाई अजमत इमाम हुसैन, अजमत। बाएं जुल्फों को जोर देते हैं, रसूल बाएं मुड़ जाते हैं। यूं दाएं बाएं चलते चलते एक बंदा आ गया। उसने कहा, वाह कितनी हसीन सवारी है, वाह कितनी अच्छी सवारी है। भाई ज़ियाफत जी, अच्छी सवारी का लफ्ज आया जो रसूल कायनात को अखलाक सिखाने आया था। सैयदजादा उस रसूल के चेहरे पे जलाल आ गया। उसने कहा, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। उसने कहा, कितनी हसीन सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। एक दफा हुसैन की जानिब देखा, फिर उसकी जानिब देखा, देख के फरमाते हैं, मैं मुस्तफा हूं, मैं मुस्तफा हूं, फकत मुझसे प्यार ठीक नहीं। नहीं, अपने मयार से नीचे नहीं आना, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। रसूल फरमाते हैं, मैं मुस्तफा हूं, फकत मुझसे प्यार ठीक नहीं, हमारी आल का दिल में हो प्यार अच्छा है। भाई अजमत आले मोहम्मद, रसूल हाथ उठा के जी हैदरी फरमाते हैं, मैं मुस्तफा हूं, फकत मुझसे प्यार ठीक नहीं, हमारी आल का दिल में हो प्यार अच्छा है। ऐ कहने वाले, सवारी ही बस नहीं बल्कि मेरी ये पुश्त पे बैठा सवार अच्छा। बड़ी मेहरबानी, बात भूली तो नहीं जनाब को? देख के शाह को, बड़ी मेहरबानी मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। देख के शाह को सरवर पे ये बोले सारे, देख के शाह को सरवर पे ये बोले सारे। मेरा मालिक शेर जाने, तू जाने, दाद जाने, ये मैरी पुलमंडा खड़ी शरीफ वाले जाने। देख कर शाह को सरवर पे ये बोले सारे, क्या पुश्त पर अपने ही बचपन को बिठा रखा, पुश्त पर अपने ही
बचपन को बिठा रखा है पुश्त पर अपने ही, बचपन को बिठा रखा है पुश्त पर अपने ही, बचपन को बिठा रखा है जिस बंदे के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत सांस ले रही है, वो बंदा सर उठाए। मैं आखिरी 2 शेर पढ़ के मसाइब भी नहीं पढ़ूंगा, मिंबर अपने भाई के हवाले करके जा रहा हूं। वो जो चाहते थे, वो जो चाहते थे, झुका डालेंगे शब्बीर का सर। नहीं, मैं समझा नहीं सका। वो जो चाहते थे, वो जो चाहते थे, झुका डालेंगे शब्बीर का सर। जितने बुजुर्ग बैठे हैं आप मुझसे पहले पहुंच गए, जितने जवान बैठे हैं मेरा साथ जरूर देंगे। जो ये चाहते थे झुका डालेंगे शब्बीर का सर, जो ये चाहते थे झुका डालेंगे शब्बीर का सर, खुद उन्होंने इसे नेज़े पे उठा रखा। बड़ी मेहरबानी जी, खुद इन्होंने इसे नेज़े पे उठा रखा है। बड़ी मेहरबानी, खुद उन्होंने इसे नेज़े पे उठा रखा है। जो था मेराज की शब, जो था मेराज की शब, पर्दा वहदत में नेहा। नहीं, मैं समझा नहीं सका। नेहा कहते हैं जी छुपे हुए को। जो था मेराज की शब, पर्दा वहदत में नेहा, जिस बंदे के सीने में गदीर सांस ले रही है। जो था मेराज की शब, पर्दा वहदत में नेहा, खून पे सरवर ने वही हाथ उठा रखा। हम पे सरवर ने वही हाथ उठा रखा है, हम पे सरवर ने वही हाथ उठा रखा है, हम पे सरवर ने वही हाथ उठा रखा है। आखिरी शेर जनाब को सलाम, बल्कि मिंबर की अजमत की कसम शेर नहीं, बाइज़ आफत जी एक आईना है। हर हुसैन के मातिम को एक आईना दिखाया है। किबला हुजूर जो बंदा हुसैन का मातमी है, उस बंदे को इस आईने में अपना अक्स नजर आए तो हाथ उठा के मेरे हक में दुआ जरूर करें। तान कर जाऊंगा, कैफियत पढ़ने लगा हूं, तान कर जाऊंगा हुसैन का मातमी मेरे साथ बोले, और जो जिंदगी में एक बार या हुसैन कह के सीने पे हाथ मारे वो हुसैन का मातमी है। तान कर जाऊंगा सीना में सरे हशर हसन क्यों, और दागे मातम से जो सीने को सजा रखा। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी।